أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها ترجمہ کنز ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ ترجمہ کنز عرفان جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زمین کا یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی یا قیامت کے دن زمین تھر تھرائے گی۔ قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہے اس کے بارے میں ایک مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ سورہ حج آیت نمبر 1 تا 2۔ ترجمہ: اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ ترجمہ کنز ایمان اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا۔ ترجمہ کنز عرفان اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، یعنی جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یاد رہے انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں، جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب زمین کے اندر ہوں تو زمین کے لیے بوجھ ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 3 تا 6۔ ترجمہ: اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی۔
चोर देखकर कहेगा इसी माल की वजह से मेरा हाथ काटा गया था, फिर सब उस माल को छोड़ देंगे और कोई उसमें से कुछ ना लेगा। वक़ाल इंसानु मा लहा, और आदमी कहेगा इसे क्या हुआ, यानी उस जलजले के वक्त जो लोग मौजूद होंगे वो हैरत से कहेंगे जमीन को क्या हुआ कि ऐसी मुस्तरिब हुई और इतना शदीद जलजला आया कि जो कुछ इसके अंदर था उसने सब बाहर फेंक दिया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। तर्जमा कंजुल ईमान, उस दिन वो अपनी खबरें बताएगी इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा। तर्जमा कंजुल इरफान, उस दिन वो अपनी खबरें बताएगी इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन वो अपनी खबरें बताएगी। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि जब ये उमूर वाक़े होंगे तो उस दिन ज़मीन अल्लाह ताला के हुक्म से मखलूक को अपनी खबरें बताएगी और जो नेकी बदी इस पर की गई वो सब बयान करेगी। और इससे मकसूद ये होगा कि ज़मीन नाफरमानों से शिकवा कर सके और फरमाबरदारों का शुक्रिया अदा कर सके। चुनांचे वो ये कहेगी फला शख्स ने मुझ पर नमाज पढ़ी, फला ने ज़कात दी, फला ने रोजे रखे और फला ने हज किया, जबकि फला ने कुफ्र किया, फला ने जिना किया, फला ने चोरी की, फला ने जुल्म किया, हत्ता के काफिर ये सुनकर तमन्ना करेगा कि उसे जहन्नम में फेंक दिया जाए। इससे मालूम हुआ कि जमीन हमारे अमाल पर गवाह है और क़ियामत के दिन ये हमारे सामने हमारे अमाल बयान कर देगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा तिलावत फरमाई। इरशाद फरमाया तुम जानते हो कि इस जमीन की खबरें क्या हैं? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज की अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसकी खबरें ये हैं कि वो हर मर्द और औरत पर उसके अमाल की गवाही देगी जो उन्होंने उसकी पीठ पर किए। वो कहेगी कि उसने फला दिन ये अमल किया और उसने फला दिन ये अमल किया, यही इसकी खबरें हैं। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो गुनाह करते वक्त जमीन से मुहतात रहे। हजरत रबीआ जर्शी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जमीन से मुहतात रहो कि ये तुम्हारी असल है और जो कोई इस पर अच्छा या बुरा अमल करेगा ये उसकी खबर देगी। इसी तरह हमारे आज़ा जिनसे हम गुनाह करते हैं ये भी हमारे अमाल पर गवाह हैं और क़ियामत के दिन ये वो सब अमाल बयान कर देंगे जो उनसे किए गए होंगे। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36। तर्जमा बेशक कान और आँख और दिल इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। और इरशाद फरमाया यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। सूरह नूर आयत नंबर 24। तर्जमा जिस दिन उनके खिलाफ उनकी जबानें और उनके हाथ और उनके पाँव उनके अमाल की गवाही देंगे। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो जब अपने कान, आँख, दिल, जबान, हाथ और पाँव से कोई गुनाह करने लगे तो वो ये बात पेश नजर रखे कि क़ियामत के दिन यही आज़ा इसके उस गुनाह की गवाही देंगे। यौमइज़िन यसदुरु नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। तर्जमा कंजुल ईमान उस दिन लोग अपने रब की तरफ फिरेंगे कई राह होकर
ताकि अपना किया दिखाए जाए। तर्जमा कंजुल इरफान, उस दिन लोग मुख्तलिफ हालतों में लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएं। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अश्ताता, उस दिन लोग मुख्तलिफ हालतों में लौटेंगे। इस आयत का एक माना यह है कि क़ियामत के दिन लोग हिसाब की जगह पर पेश होने के बाद वहां से कई राहें होकर लौटेंगे। कोई दाईं तरफ से होकर जन्नत की तरफ जाएगा और कोई बाईं जानिब से होकर दोज़ख की तरफ जाएगा ताकि उन्हें उनके अमाल की जज़ा दिखाई जाए। दूसरा माना यह है कि जिस दिन वो उमूर वाक़े होंगे जिनका जिक्र किया गया, तो उस दिन लोग अपनी कब्रों से हिसाब की जगह की तरफ मुख्तलिफ हालातों में लौटेंगे कि किसी का चेहरा सफेद होगा और किसी का चेहरा सियाह होगा, कोई सवार होगा और कोई जंजीर और बेड़ियों में जकड़ा हुआ पैदल होगा, कोई अमन की हालत में होगा और कोई खौफ ज़दा होगा ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाए। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तर्जमा कंजुल ईमान, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा और जो एक जर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा। तर्जमा कंजुल इरफान, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे वो उसे देखेगा और जो एक जर्रा भर बुराई करे वो उसे देखेगा। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे वो उसे देखेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हर मोमिन और काफिर को क़ियामत के दिन उसके नेक और बुरे अमाल दिखाए जाएंगे। मोमिन को उसकी नेकियां और बुराइयां दिखाकर अल्लाह ताला बुराइयां बख्श देगा और नेकियों पर सवाब अता फरमाएगा, और काफिर की नेकियां रद्द कर दी जाएगी क्योंकि वो कुफ्र की वजह से ज़ाय हो चुकी, और बुराइयों पर उसको अजाब किया जाएगा। हजरत मोहम्मद बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि काफिर ने जर्रा भर नेकी की होगी तो वो उसकी जजा दुनिया में ही देख लेगा, यहाँ तक कि जब दुनिया से निकलेगा तो उसके पास कोई नेकी ना होगी और मोमिन अपनी बुराइयों की सजा दुनिया में पाएगा तो आखिरत में उसके साथ कोई बुराई ना होगी। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे पहली आयत मोमिनीन के बारे में है और ये आयत कुफ्फार के बारे में है। इस आयत से मालूम हुआ नेकी थोड़ी सी भी कार आमद है और गुनाह छोटा सा भी वबाल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कभी अल्लाह ताला की खुशनुदी की बात कहता है और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता, यानी बात बातें इंसान के नजदीक निहायत मामूली होती हैं, अल्लाह ताला उस बात की वजह से उसके बहुत से दर्जे बुलंद करता है, और कभी अल्लाह ताला की नाराजगी की बात करता है और उसका ख्याल भी नहीं करता, इस बात की वजह से जहन्नम में गिरता है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज व क़रीब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।